Hello everyone, welcome to iExamB. In our revision series for Grade B 2022 Phase 2, today I am going to discuss about the RBI's one of the most important functions of monetary policy, and we will also discuss the key highlights of the MPC of June 2022. Before I move ahead, let me introduce you to our faculty, expert faculty again, who have been contributing to this revision series and have been behind the comprehensive course for RBI Grade B preparation. We have with us Dr. Sanjeev Sharma, who is ex-CGM RBI, Mr. Sushil Ragde, who is ex-manager RBI and has been guiding for RBI preparation for almost a decade now, Mr. Chandra Prakash Joshi, ex-AGM of RBI and has been again guiding for RBI preparation for the last 5 years. He himself had cleared RBI exam with an All India rank of 5. Arunima Sinha ma'am, an expert in guiding for various banking and regulatory body exams from more than a decade, and she has been an ex-manager at SIDBI. Myself, Prachi Agarwal, with more than a decade of experience in the financial markets and experience of guiding for RBI Grade B from the last 4 years. Shikha Malhotra ma'am with 9 years of experience in the banking industry, and Amit Padhi sir, an expert ESI and GA faculty with iExamB. So take advantage of the knowledge of all the expert faculty for your preparation for RBI Grade B 2002 and future 2023. So let's start with our topic of monetary policy today. What is monetary policy? It is basically the use of monetary instruments by the central bank. So in our case, it is the RBI, Reserve Bank of India, to help regulate the interest rates, the money supply and the availability of credit in the financial system. And why is all this done? This is done with the objective of achieving financial stability and economic policy in the country. So the major goal of monetary policy is maintaining price stability to ensure balanced and sustainable growth in the economy and meeting the inflation target. So RBI has been following the flexible inflation targeting framework since 2016, where our target inflation is 4% with a band of plus minus 2. So plus minus 2 से अगर हम बोले, so it will be 2% to 6%. So इस रेंज में RBI एम करता है हमारा इन्फ्लेशन रहे, एंड टारगेट इन्फ्लेशन हमारा 4% है. फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क साइन हुआ था अग्रीमेंट RBI एंड गवर्नमेंट के बीच में फरवरी 2015 में, एंड इसे इफेक्टिव बनाया गया था 2016 से. सो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे बाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके, जो अल्टीमेटली आपको इंश्योर करेगा कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैक पे है और अफोर्डेबल है. सो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया जाता है 5 साल के लिए गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके. RBI गवर्नमेंट कंसल्ट करते हैं और 5 साल के लिए ये टारगेट सेट करते हैं. तो पहली बार जब ये टारगेट 2016 में सेट हुआ था, 2016 टू 2021 के लिए 4% का प्लस माइनस 2% का बैंड टॉलरेंस लिमिट दी गई थी और वो सेट हुआ था. 2021 के बाद जब इसे दोबारा रीसेट करना था, तो सेम टारगेट को कंटिन्यू किया गया है, दैट इज 4% अभी भी हमारा टारगेट है विद प्लस माइनस 2% ऑफ टॉलरेंस लेवल. ओके, सो अब इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे. सो RBI में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो बनाई गई है सेक्शन 45ZB के अंतर्गत RBI एक्ट 1934 के. इसमें 6 मेंबर्स होते हैं. सितंबर 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विद 6 मेंबर्स. 6 मेंबर जो इसमें हैं, 3 RBI के होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं. एक्स ऑफिशियो मतलब जो ऑफिशियल आपकी डेजिग्नेशन है RBI में, उसके थ्रू आप इस कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं. तो पहले है RBI गवर्नर. तो जो भी RBI के गवर्नर है वो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाय डिफॉल्ट मेंबर होंगे. सेकेंड है डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज है. तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं वो MPC के मेंबर जरूर होंगे. एंड एक और RBI का ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है. यूजुअली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं यूजुअली. अदरवाइज RBI अपॉइंट कर सकती है अपने सेंट्रल बोर्ड से.
इनके अलावा 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, हु आर एक्सपर्ट पीपल, जो बहुत एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल पीपल होते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी। सो इन फील्ड्स में से जो बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको लिया जाता है, राइट। तो एमपीसी कम से कम साल में 4 बार मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ आज की डेट में हर 2 महीने में एमपीसी होती है। पिछली बार एक ऑफ साइकिल मीटिंग भी करी गई थी मई में, राइट। अदरवाइज अप्रैल में थी, उसके बाद अभी जून में जो हुई है, जून में होनी चाहिए थी, बट बीच में एक इमरजेंसी ऑफ साइकिल मीटिंग कर दी गई थी। बट अदरवाइज एवरी 2 मंथ्स में इंडिया में एमपीसी होती है। इसमें कोरम होता है 4 मेंबर्स का, हमने बताया 6 मेंबर्स हैं। तो कोरम मतलब मीटिंग होल्ड करने के लिए 4 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए और सब मेंबर्स का एक एक वोट होता है। अब 6 मेंबर हैं, अगर अभी वोट ऐसे हुआ कि 3 अगेंस्ट या 3 फेवर में है, तो चेयरमैन जो हैं एमपीसी के, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है और वो एक सेकेंड वोट कास्ट करके एक डिसीजन ले सकते हैं। सो ऐसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी चलती है। सो बिफोर आई मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट iExamB स्कोर्स विच मेक योर प्रेपरेशन 50% फास्टर बाय गिविंग यू एक्यूरेट मटेरियल। आपको एकदम क्रिस्प कंटेंट, नोट्स, छोटी छोटी वीडियोस 10-15 मिनट की वीडियोस के फॉर्मेट में दी जाती है। रिविजन वीडियोस भी बनाई जाती हैं। बीपीडिया रहता है वीकली और मंथली, एंड अब हम आपके लिए डेली भी शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो ऑल दीज प्रेपरेशन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, आप अपने खुद लेवल के टेस्ट बना सकते हैं मेक माई टेस्ट आप फीचर से वेबसाइट पे। सो ऑल दीज हेल्प यू टू प्रिपेयर विद अ फोकस। आप फोकस जब प्रेपरेशन करते हैं तो आपकी प्रेपरेशन 50% फास्टर होती है। ऑल दिस यू कैन फाइंड एट iExamB ओनली। So let's move ahead। आगे अगर हम बढ़ें तो एमपीसी में आज की डेट में कौन कौन मेंबर्स हैं। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया था कि 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं, एक आरबीआई गवर्नर, तो मिस्टर शक्तिकांत दास जो अभी आज भी आरबीआई के गवर्नर हैं, ही इज अ मेंबर। देन दूसरे होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। सो आज की डेट में जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं वो है माइकल डी पात्रा, सो ही इज अ मेंबर, तो वो भी मेंबर है एमपीसी के। एंड थर्ड है एक ईडी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, वो है डॉक्टर राजीव रंजन। ये अभी रिसेंटली मई 2022 में ही अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल 3 मेंबर्स हैं, इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और आज की डेट में ये हैं डॉक्टर आशिमा गोयल, जो एक प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में, डॉक्टर शशांक भिंडे हु इज़ अ सीनियर एडवाइजर एट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा हु इज़ अ प्रोफेसर एट IIMA। सो जैसा बताया था कि वेरी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पीपल आर इंक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक, फाइनेंस, बैंकिंग बैकग्राउंड। सो इन एक्सपर्ट्स को लिया गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन निभाने के लिए आरबीआई के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को 2 कैटेगरीज में किया जा सकता है। एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स एंड दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव। हम क्वांटिटेटिव की ज़्यादा बात करते हैं, उनके बारे में हमें न्यूज़ में ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। एंड जो सबसे कॉमन है वो 5 हैं, जैसे आपका फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट है या क्रेडिट रैशनिंग है। मैं अगर क्रेडिट रैशनिंग का आपको एक एग्जाम्पल दूँ, इस बार की ही मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बताया कि वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स कितना दे सकते हैं, राइट। तो एक लिमिट दी गई है। सो वो आपकी क्रेडिट रैशनिंग है कि आपने एक लिमिट कर दिया कि कितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर आपका जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत आरबीआई ने आपको बताया है कि आप अपनी कैपिटल का कितना मैक्सिमम परसेंटेज एक सिंगल ग्रुप को या बोरोअर को दे सकते हो। सो उस तरीके के रूल्स आ सकते हैं। देन फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि आप कितना लोन दे सकते हो, जैसे एलटीवी रिक्वायरमेंट्स होती है, लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो ऐसे कुछ फिक्स करके आरबीआई कंट्रोल कर सकता है मनी फ्लो इन द या क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। देन देयर इज मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन या कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस भी अलग तरीके हैं जिसके अंतर्गत आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव वे से इम्प्लीमेंट कर सकता है इकोनॉमी में। अगर हम
क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें, जैसा मैंने बताया था कि ये ज़्यादा बात किया जाता है, इनके बारे में आप ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और सुनाई देता है। तो क्वालिटेटिव टूल्स आपका बैंक रेट होता है, आज की डेट में इसको कम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपकी LAF विंडो, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत आती है आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो, और अब जो नया इंट्रोड्यूस किया है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, इसके अलावा आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहती है। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या करती है, बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अरेंज करने के लिए हेल्प करती है। RBI के थ्रू अपने उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको एज अ कोलैटरल यूज करके वो RBI से ले सकते हैं, या अगर उनके पास एक्सेस मनी है तो वो एक्सेस मनी को पार्क कर सकते हैं RBI के पास एट डिफरेंट रेट्स, रेपो अगर वो लेना चाहते हैं लोन, अगर वो एक्सेस मनी रिजर्व करना चाहते हैं, कीप करना चाहते हैं RBI के पास, तो रिवर्स रेपो यूज होता है। अभी जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है, इसकी पार RBI को सेक्शन 17 के अंतर्गत मिली थी इन 2018। द डिफरेंस जो डिफरेंस है रिवर्स रेपो और SDF, इसमें डिफरेंस ये है कि रिवर्स रेपो में जैसे मैंने बताया कोलैटरल देना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, SDF में आपको कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। एंड रिवर्स रेपो कब यूज़ होता है, रिवर्स रेपो तब यूज़ होता है जब बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स हैं और वो RBI में पार्क करते हैं, तो इस केस में RBI को सिक्योरिटीज़ बैंक्स को देनी पड़ेगी। तो SDF के अगर यूज़ किया जा रहा है तो RBI को बैंक्स को सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ेंगी, राइट। सो ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी यूज़ की जाती है बैंक्स के द्वारा टू गेट फंड्स RBI से शॉर्ट टर्म फंड्स लेने के लिए। हाउएवर इसमें और LAF या रेपो में, MSF और रेपो में डिफरेंस ये है कि ये आप अपने SLR में भी जाके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको यूज़ करके ओवरनाइट बेसिस के लिए इमरजेंसी फंड यूज़ किया जा सकता है, तो इसकी कॉस्ट हाई होती है। उसके अलावा आपके रिजर्व रेशियोज होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व जो कैश के फॉर्म में बैंक्स को रखना पड़ता है RBI के पास, एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो होता है जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में रखते हैं। आज की डेट में ये 4.5% है और ये 18% है। इसके अलावा RBI OMO ऑपरेशंस यूज़ करती है, करेंसी स्वैप डील्स यूज़ कर सकती है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती या बेचती है, डिपेंडिंग ऑन उसको लिक्विडिटी बढ़ानी या घटानी है, मार्केट से मनी सप्लाई को किस तरफ ले जाना है। इसके भी अलग अलग फॉर्मेट्स अब RBI यूज़ करने लगी है। एक फॉर्मेट है ऑपरेशन ट्विस्ट, राइट। तो बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विडिटी टूल्स आज की डेट में RBI यूज करती है। नाउ लेट्स डिस्कस मई और जून की हमारी नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी, स्केड्यूल्ड थी। मई में एक ऑफ साइकिल करी गई थी, तो कुछ हाइलाइट्स मई के, एंड जून में आज RBI ने कल क्या कहा है, क्या चेंजेस लाए हैं, वो हम अब आज डिस्कस करेंगे। फॉर फेज़ 2 प्रेपरेशन IXAM-B में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट के अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। आपको 10 ESI के मॉक टेस्ट, 10 FM के मॉक टेस्ट एंड 5 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। सो आउट ऑफ दिस 25 मॉक टेस्ट, हम इसमें से 15 मॉक टेस्ट क्लास में आपके साथ लाइव डिस्कस करते हैं एवरी डे। ऑलरेडी हम एक ESI का, एक FM का, एक इंग्लिश का कर चुके हैं, एंड एवरी डे लाइक दिस आपका एंड तक हम सारे मॉक टेस्ट डिस्कस करके, 15 मॉक टेस्ट डिस्कस करके आपको प्रिपेयर करेंगे होलिस्टिकली फॉर योर फेज़ 2 एग्ज़ाम। मूविंग अहेड, अगर हम अब MPC में मई और जून दोनों की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी रेट्स कैसे मूव हुए हैं। सो अगर हम पहले देखें 2 साल से, जब कंट्री कोविड से हिट हुई थी, तो अकोमोडेटिव स्टांस RBI ने बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, एंड RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को सपोर्ट किया अकोमोडेटिव स्टांस रख के, एंड रेपो रेट में और पॉलिसी रेट में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। तो 4% पे हमारा रेपो रेट
मई 2020 से कंटिन्यू हो रहा था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% पे, बैंक रेट 4.25% पे एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, रिवर्स रेपो रेट जो हमारा है उस पे रखा गया था। यहाँ पे जो ये असिमेट्रिकल डिफरेंस मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर में लाया गया था वो क्या होता है उसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसके बाद अभी मई में जो हमारी एक ऑफ साइकिल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, तब इन्फ्लेशन बढ़ने और इन्फ्लेशन 6% ऊपर जाने, कंसिस्टेंटली ऊपर रहने की वजह से एंड जियोपॉलिटिकल रीजंस, वॉर, यूक्रेन वॉर थी, रशिया यूक्रेन वॉर का प्रेशर आ रहा था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे थे, फूड और फ्यूल के प्राइसेस कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर थे। तो इन्फ्लेशन हमारी अप्रैल में 7.8% सीपीआई हिट हुआ था। सो इसके अंतर्गत आरबीआई ने मई में एक ऑफ साइकिल एमपीसी मीटिंग रखी थी जहां पे उन्होंने 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स को, पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया था। तो उन्होंने 40 बिप्स से बढ़ाया, तो हमारे नए पॉलिसी रेट्स 4.4% बन गए थे मई में। और स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पहले यूज नहीं की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड 4.15% पे लाया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.65% पे एंड रिवर्स रेपो रेट को नहीं छेड़ा गया है, वो कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज हमने बीच में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लेके आया है रिवर्स रेपो की जगह पे यूज करने के लिए। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था मई 2022 में। अब जो नॉर्मल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जून में स्केड्यूल्ड थी, उसमें आरबीआई ने फिर से इंक्रीज किए हैं इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से, और जो अब करंट हम लोग के पॉलिसी रेट्स हैं वो है 4.9%, 4.65% स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल फैसिलिटी 5.15% एंड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट कंटिन्यूज टू बी 3.35%। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे मूव हुई है पिछले 2 साल में, या आरबीआई ने कैसे अकोमोडेटिव स्टांस रख के कैसे सपोर्ट किया है इकोनॉमी को पिछले 2 साल में, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये डेटा यूज कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने में। अगर हम स्टांस की बात करें, अभी तक हमारा अकोमोडेटिव स्टांस था, अभी भी है, बट अभी जो फोकस है आरबीआई का वो चला गया है विड्रॉल पे, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस, राइट। इसका ये मतलब है कि हमने बहुत लिक्विडिटी इंश्योर करी है, अकोमोडेटिव स्टांस मतलब इंश्योर किया है कि आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो वो भी है, बट अब क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन को भी हमें कंट्रोल करना है, तो अब हम उसके विड्रॉल मोड में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट ना किया जाए, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी बहुत सेंसिटिव स्टेज पे है। ओके, तो जो मैं आपको पॉलिसी कॉरिडोर की बात कर रही थी, पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है? पॉलिसी कॉरिडोर जो आपका होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन सीलिंग एंड फ्लोर। तो हमारा पॉलिसी रेट है, रेपो रेट, ये बीच में रहता है, राइट। तो ये बीच में रहता है और इससे इसके एक तरफ आपका MSF होता है, विच इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो आपका रेट होता है जिसपे आरबीआई को, बैंक्स को ओवरनाइट फंडिंग के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है आपके SLR वाले G-Secs के भी अगेंस्ट, राइट। तो ये वाला जो MSF रेट होता है ये यूजुअली 25 बिप्स ऊपर होता है पॉलिसी रेट से। एंड आपका जो फ्लोर होता है, तो इसको बोलते हैं सीलिंग ऑफ पॉलिसी कॉरिडोर। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लोर और सीलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पॉलिसी कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये जो सीलिंग है एंड ये फ्लोर है। तो ये फ्लोर जो पहले है रिवर्स रेपो हुआ करता था, इसको चेंज करके अब SDF कर दिया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को फ्लोर बना दिया गया है या बेस बना दिया गया है पॉलिसी कॉरिडोर के, और ये 25 बिप्स कम होता है रेपो रेट से। सो ये इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी सिमेट्री रिस्टोर हो गई। सिमेट्री रिस्टोर का मतलब है +25 -25, दोनों में दोनों तरफ हमारा सेम प्लस माइनस हो रहा है, एंड जो डिफरेंस है वो 50 बेसिस पॉइंट का है। तो ये सिमेट्री रिस्टोर हो गई है। पहले क्या था, और जो ये असिमेट्री थी ये 2020 में, अप्रैल 2020 में कोविड के बाद असिमेट्री आई थी, अदरवाइज पहले भी सिमेट्री हुआ करती थी 2020 से पहले। तो तब रिवर्स रेपो को
और कम किया गया था बिकॉज हमारा अकोमोडेटिव स्टांस था, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत थी एंड हम डिस्करेज भी करना चाहते थे बैंक्स को एक्सेस फंड्स को बैंक आरबीआई के पास रखने के लिए, क्योंकि अगर रिवर्स रेपो बहुत ज़्यादा होगा तो बैंक्स क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो लेंडिंग नहीं कर रहे थे। डिस्पाइट आरबीआई ने इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी, वो आगे ग्रोथ के लिए क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो डिस्करेज करने के लिए रिवर्स रेपो को ज़्यादा कम कर दिया गया था। तो 25 बिप्स कम करने की जगह 65 बिप्स बेसिस पॉइंट से नीचे कर दिया गया था रिवर्स रेपो को, जिससे आपका पॉलिसी कॉरिडोर जो है वो एक्सपैंड होकर 90 बेसिस पॉइंट बन गया था, राइट। तो 2 साल से ये चीज़ चल रही थी और अब मई में जब ऑफ साइकिल मीटिंग हुई थी तब एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करके आरबीआई ने पॉलिसी कॉरिडोर को वापस से सिमेट्रिकल लेवल पे ला दिया गया था। ओके, अब लेट्स मूव ऑन टू सम डेवलपमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी। तो जब एमपीसी मीटिंग होती है तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके पॉलिसी रेट्स में क्या चेंजेस होंगे, आपका स्टांस, आरबीआई का स्टांस क्या होगा, उसके अलावा कोई भी और डेवलपमेंट या रेगुलेटरी चेंजेस अगर आरबीआई को लाने की ज़रूरत है तो वो भी उसके बारे में एमपीसी में डिस्कस होता है या उसके साथ रिलीज होता है। तो एक चीज़ जो उन्होंने अभी इस बार जून में करी है, ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आरबीआई ने सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को भी हाइक किया था 50 बेसिस पॉइंट से मई में, राइट। तो आज की डेट में सीआरआर जो है वो 4.5% हो चुका है। ओके, अब कमिंग बैक टू रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस, तो इस बार यूसीबीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेशन भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब अमेंड हुआ था तो यूसीबीज का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई को दे दिया गया था। उसके बाद से आरबीआई रेगुलरली नए पॉलिसी या रिव्यू किए जा रही है एंड आज की डेट में उन्होंने लेटेस्ट जो किया है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन जो यूसीबीज दे सकते हैं टीयर 1 या टीयर 2 यूसीबीज, उनकी लिमिट एनहांस कर दी है। तो पहले 30 लाख थी टीयर 1 यूसीबीज के लिए, उसको 60 लाख कर दिया है, तो डबल कर दी है। एंड टीयर 2 यूसीबीज की लिमिट 70 लाख थी, उसको इंक्रीज करके 140 लाख कर दिया है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अलाउ किया है, उनकी लिमिट्स भी इंक्रीज करी हैं एंड जो 20 लाख थी उसको 50 लाख किया है, जो आरआरबी जिनका 10 करोड़ से कम की नेटवर्थ है और जिनकी 10 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्क है, वैसे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लिमिट को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग को भी लोन्स देने के लिए अलाउ किया गया है और उसकी एग्रीगेट लिमिट 5% है। तो ये कुछ आपके एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आता है पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट्स पूछी जा सकती हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करी हैं या बताई हैं, एक है आपका रेकरिंग पेमेंट, ई मैंडेट। आप अपने कार्ड्स पे मैंडेट दे सकते हैं, जो भी आप रेगुलरली पेमेंट्स करते हैं, से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप रेकरिंग, ये हर महीने की अगर पेमेंट हो रही है तो इसके लिए आप एक ई मैंडेट, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट दे सकते हैं अपने बैंक को कि ये पेमेंट करनी है आपको, और इसके लिए ऑथराइजेशन वापस हर बार नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी लिमिट ऐसी सच पेमेंट्स के लिए विदाउट ऑथराइजेशन जो रिक्वायरमेंट अमाउंट थी उसकी लिमिट 5000 रुपीज़ थी, इसको इंक्रीज करके अब 15,000 किया जा रहा है। अनदर इज यूपीआई, राइट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जिसने डिजिटल पेमेंट्स को बहुत रेवोल्यूशनराइज किया है हमारी कंट्री में। ये आप लिंक कर सकते थे अभी तक अपने बैंक अकाउंट से, अपने डेबिट कार्ड से, इसकी अब लिंकिंग क्रेडिट कार्ड से भी अलाउ की जाएगी एंड इसके लिए आरबीआई डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लेके आएगी। सेकेंड था 2021 में एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टार्ट किया गया था। पर्पस इसका था टू हेल्प बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पेमेंट सिस्टम। तो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट्स है, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी थ्रू दिस फंड। और इस फंड में कंट्रीब्यूट कौन कौन करता था? आरबीआई करती थी और कार्ड इशूइंग बैंक्स करते थे। ओके, तो आरबीआई ने 250 करोड़ शुरू में किया था।
ये बहुत सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है। एंड जो इसके फंड में जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी वो POS जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो वो छोटी जगहों के लिए Tier 3 या Tier 4, 5 या 6 सिटीज़ में, Tier 1 या Tier 2 में नहीं अलाउ था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। सो और सब जगहों पे भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो पाए एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, तो उसके लिए ये प्रोवाइड बनाया गया था फंड। फिर लेटर ऑन 2021 अगस्त में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, PM स्वनिधि के नाम से, स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने के लिए जो बहुत हिट हुए थे कोविड के टाइम पे। सो उन बेनिफिशियरीज के लिए अगर वो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में भी हैं तो उनको भी कवरेज प्रोवाइड करी गई थी अंडर दिस स्कीम। इसको बिकॉज इसका जो यूज़ है, मतलब डिप्लॉयमेंट हुआ है इस फंड के थ्रू POS, वो बहुत ज़्यादा टारगेट से ऊपर है। कंसिडरिंग दैट इसका रिव्यू अब RBI ने बोला है कि वो रिव्यू करेंगे एंड मे बी दे विल ऑल्सो इंक्रीज द सब्सिडीज। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, कुछ 799 करोड़ का ये फंड ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से 250 करोड़ RBI ने इस फंड में कंट्रीब्यूट किया है। सो ये आपके नेटशेल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स जो RBI ने अनाउंस किए हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ में मई और जून में। सो दैट्स ऑल आज के सेशन में। RBI का कोर्स आपको 70% फ्लैट डिस्काउंट पे iExamBee पे आज की डेट में अवेलेबल है। तो अगर आप क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल फीडबैक चाहते हैं अपने मॉक टेस्ट पे एंड अपनी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी, इतने सारे हमारे पास एक्स RBI पर्सनल हैं और फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपको मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।